Well, early in the day, we met those who gave up their high-flying careers for business. But our next speaker, ladies and gentlemen, I must say, gave up his high-flying career, called it quits, and all of that for good. Good being the key word. With over 28 years of industry experience, he has worked with leading companies across telecom and broadcasting. He was the CEO of Adani Power, one of India's largest private electricity producers, CEO and President, South Asia at Alcatel-Lucent, an IIT alumnus and an MBA. At 50, he completely changed the course of his life and pursues his passion for poetry and is spreading goodness through his NGO that's called Pramajyoti Foundation. Ladies and gentlemen, this evening he's here to talk about life lessons, and of course he will also share with us some of his poetry from his new book, Bhigi Rate. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Ravi Sharma. Good evening, everybody. I can see that being the last speaker, there are some disadvantages. Anyway, my name is Ravi Sharma, and my apologies to people who will not be able to understand Hindi, because my poetry will be in Hindi. I changed the course of my life when I turned 50, and I decided to devote my life in solving not company's problem, but solving the problem of the world. And I started looking at it as to what is the genesis of world's problems. And I found out that while it looks and it appears that world has billions of problems, but actually there is only one problem. And that is the problem. I deciphered it in this way, that all of us, irrespective of where we live, what caste we belong to, which country we live, we all wish and want goodness to be with us. Because goodness lives with happiness, or happiness lives with goodness. It is only goodness that we run to our houses every evening, because we know in those four walls, goodness is waiting for us. But the problem is that nowadays, I don't meet a father who says that I'm very proud of my daughter because she helps everybody. I don't meet a mother who says I'm very proud of my son because he's always truthful. What I hear is that I'm very proud of my daughter and she has scored 99.9%. Here is my son who works with McKinsey and he earns $3 million or 3 million rupees. So the fundamental principle is that what I discovered, that we have created a society where we only appreciate success. We don't appreciate goodness. And the fundamental is people do what they get appreciated for. So more and more people appreciate success, but they don't appreciate goodness. I, as a human being, want that if I meet an accident on the road, the next guy should take me to the hospital. But I, the same person, will tell my son that if you find somebody to be if you find some accident on the road, don't stop it, because you might be in trouble. So we all want goodness, but we want somebody else to do it. And why it is happening? Because goodness is not appreciating. And because goodness is not appreciated and recognized, people are not doing it. So according to me, world has only one problem, that goodness is shrinking. And the only way, and because goodness is shrinking, in spite of there are so much of success and everything else, there is a stress, there is uncertainty, and we are all anxious as to what is going to happen. Therefore, if our son is traveling, we give him 5 calls or 10 calls as to where you are. Have you sat there? Have you not sat there? What is going to happen? It is only because of that in spite of being successful, people are having depression. Because the goodness is not assured. Imagine a world where goodness is there. And if goodness is there, do you think anybody will die of hunger? No. People will help it. Do you think anybody will die because of hospitalization? Or because that person is not able to afford it? It won't happen. So the main purpose of my foundation is spreading goodness. So how do we do it? We try and identify those people who have chosen goodness as their way of life. We go to them, we create a film on them, and we try to
put it on social media to make sure that all those people get inspired to do goodness. But more than anything else, we enhance the lives of people who are doing goodness, so that people around them start believing that doing goodness is the best option. And that is the purpose of Pramajyoti Foundation, the foundation which I run. The second thing which I do, but before I do that, because I see some people at least are here, that how many people remember the vision and mission of their company? Only 2? I don't believe it. So most of the time, most of the people remember the vision and mission of their company, where they work. And they remember it by heart. Okay, let me ask a different question. How many of you would like to work for a company which has no vision and mission? It's very difficult. I hardly see a hand. But my next question is, how many of you have written down vision and mission of your life? Any hand? Maybe one hand. So imagine that we are not willing to give 1 year of our life to a company which does not have vision and mission. But we are leading a life where there is no vision and mission. 50 years, 60 years, 70 years. So second thing which I do, I try to help people to get their vision and mission in life. Because unless you know where you want to go, you would become activity-oriented. And it is impossible for you to find out what actually you want and what is going to give you happiness. Because ultimate objective of life is goodness and happiness. The third thing which we try to do is, according to me, the world is divided into 2 categories of people. People who are poor and people who are rich. So there are poor people who earn 50 rupees, 100 rupees, 200 rupees, 500 rupees a day, and somehow they look after their families. Then there are people who earn 5 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs, or maybe a crore a month. But do you know that 98% of them also only look after their family? So I put all of them in poor category. Because my shirt is made in 2 meters, yours in 6 meters, but it's a shirt. So if somebody who's earning 3,000 rupees is looking after his family, somebody who's earning 1 crore is looking after his family, according to me, all of them are poor. So the only people who can look after beyond their family, according to me, are rich people. And we encourage everybody, we inspire everybody, we motivate everybody to change their category from being poor to becoming rich. And we would like that everybody in this world should be a rich person, not a poor person. The fundamental theory of life is, which is a law of physics, that if you want to go from point A to point B, there are only 2 conditions when you will not reach there. When your direction is wrong, or when you stop on the way. So once you have discovered your vision and mission of your life, after that the journey becomes much more lighter, much more enjoyable. Because ultimately, life is what? Life is simple. You should have time, and you should be present in that time. Because if you don't have time, then life has no meaning. And if you are not present in that time, then also life has no meaning. So that is where we help people. And we believe that whatever you try in life, you might be successful, you might be a failure. But whatever you'll decide will happen. And if you have not decided, then it won't happen. And if it is not happening, then you have not decided. So if you look at your life, whatever you decide has happened. And how to know that whether you have decided or not? When your mind stops fluctuating, that's the time you should know that you have decided. You are here because you decided. You didn't try. And whosoever has tried is not here. So how many of you don't understand Hindi? Anyone who doesn't? Okay, you don't understand. So my apology to you. Maybe we'll have a private session and I'll be able to explain to you in English. But all of you who understand Hindi, I'm going to read last 10th of last month,
I released this book of mine, which is a book of poetry. And I would read few poems from there. There are 3 poems I'm going to read for you. One is titled Ma. The second one is dedicated to women of the world. And the title is मैं औरत हूँ. And the third one is titled तुम. माँ कहती है, तू अपने आप को इतना सताता क्यों है? माँ कहती है, तू अपने आप को इतना सताता क्यों है? घर खाने का वक्त ही नहीं है तो फिर कमाता क्यों है? माँ कहती है, तू अपने आप को इतना सताता क्यों है? घर खाने का वक्त ही नहीं है तो फिर कमाता क्यों है? तेरे चेहरे से लगता है कि बचपन तेरा सो सा गया है. तेरे चेहरे से लगता है कि बचपन तेरा सो सा गया है. बच्चा जो मैंने पाला था वो कहीं खो सा गया है. तेरे चेहरे से लगता है कि बचपन तेरा सो सा गया है. बच्चा जो मैंने पाला था वो कहीं खो सा गया है. अब तेरे पास वक्त की बहुत कमी सी है. अब तेरे पास वक्त की बहुत कमी सी है. कहने को तो बहुत पाया तूने, पर आंखों में कुछ नमी सी है. आ बैठ तू मेरे पास. आ बैठ तू मेरे पास, मैं फिर से तुझे बचपन से मिलाती हूं. आ बैठ तू मेरे पास, मैं फिर से तुझे तेरे बचपन से मिलाती हूं. पुराने वो दिन फिर से तेरे जहन में लाती हूं. याद है तुझे? याद है तुझे? शायद याद ना होगा. याद है तुझे? शायद याद ना होगा कैसे तू चांद को चंदा मामा बुलाता था. भरकर उसे आंखों में कितना मुस्कुराता था. अपने छोटे पांवों से सारे घर में भागा फिरता था. चलना सीखा था तभी तूने, न जाने कितनी बार गिरता था. याद है तुझे? गिर के भी तू रोता नहीं मुस्कुराता था. गिर के भी तू रोता नहीं मुस्कुराता था. हम सबको अपने पीछे कितना भगाता था. तोतली अपनी बोली से कितना हंसाता था और अपने बुखार में अपनी माँ को कितना रुलाता था. याद है तुझे? तेरे ठीक होने की हजारों दुआएं करती थी. तेल के दिए को रखकर नाली पे रखा करती थी. याद है तुझे स्कूल का पहला दिन? याद है तुझे स्कूल का पहला दिन? जाते समय तू कितना रोया था. याद है तुझे स्कूल का पहला दिन? जाते समय तू कितना रोया था. और उसी दिन आंखों में मैंने एक सपना बोया था. तुझे पढ़ाना है, लिखाना है और सबसे ज्यादा एक अच्छा इंसान बनाना है. याद कर वो सारी बातें. आंगन में सोकर गुजारी रातें. मच्छरदानी से दिखती वो तारों की सौगातें. नानी की कहानियों में राजकुमारी की राजकुमार से मुलाकातें. याद है तुझे? तेरा पिट्ठू से लेकर गुल्ली डंडा तक खेलना. स्कूल की रिक्शा को पीछे से ढकेलना. टीन के डिब्बों को डोरी से जोड़ना. पतंग का उड़ाना और लट्टू को फोड़ना. याद है तुझे? आइस पाइस का खेल वो और जाके छिप जाना. फिर शाम को लौट के दोस्तों के नाम बताना. याद है तुझको? छुट्टियों में खेत पर जाना और कई कई बार ट्यूबवेल में नहाना. हल के साथ चलना और बैलगाड़ी को हाँकना. भोर होते ही निकलना और शाम से पहले न झांकना. याद है तुझे? ऊंचे उस पेड़ से जामुन को तोड़ना. पड़ोसी के बाग में ना आमों को छोड़ना. माली की शिकायत को झूठा ही बताना और दोस्तों के बीच अपनी इस बात पे कितना इतराना. याद है तुझे? नानी का वो तेरे हांडी में दूध रखना और तेरा उंगली डालकर मलाई का पहले चखना. चलते समय दादी का 5 रुपए तुझको देना और तेरा पैर छू के आशीर्वाद उसको लेना. याद है तुझे? शायद याद ना होगा स्कूल में तेरा वो गणित से घबराना. पर खेलों की ट्रॉफियों को ड्राइंग रूम में सजाना. इम्तिहान से पहले मेरा बांटना वो नजराना और तेरा खराब अपने नंबर अपने पापा से यूं छिपाना. याद है तुझे? फिर गया बचपन और तू कितना संभल गया. फिर गया बचपन और तू कितना संभल गया. कॉलेज की पढ़ाई में बिल्कुल ही ढल गया. मेहनत ने तेरी तुझको
कामयाब बनाया और जिंदगी के खेल में आफताब बनाया। पर मुझे तेरा बचपन ही सबसे अजीज है। पर मुझे तेरा बचपन ही सबसे अजीज है, वही मेरे दिल के सबसे करीब है। अब तो तेरे पास न वक्त है न बात है। अब तो तेरे पास न वक्त है न बात है, काम ही काम है, न दिन है न रात है। अब तू मुझे जो फोन भी करता है, अब तू मुझे जो फोन भी करता है, तो मैं लंबी बात न कर बैठूं इस बात से डरता है। अब तू मुझे जो फोन भी करता है, तो मैं लंबी बात न कर बैठूं इस बात से डरता है। मैं भी तुझे अब कुछ नहीं बताती हूं। मैं भी तुझे अब कुछ नहीं बताती हूं, दुख दर्द को अपने बस दिल में ही छिपाती हूं। मैं ठीक हूं यहां पर हरदम यही कहती हूं। मैं ठीक हूं यहां पर हरदम यही कहती हूं, पर इंतजार में तेरे हर रोज ही रहती हूं। जब तेरी याद आती है घंटों न मैं कुछ करती हूं। जब तेरी याद आती है घंटों न मैं कुछ करती हूं, आंखों में अपनी तेरे बस बचपन के सपने भरती हूं। आंसू मेरे कभी कभी गालों से ढलकते हैं। आंसू मेरे कभी कभी गालों से ढलकते हैं, तेरी उंगलियां थामेंगी कभी उनको, ये सोचकर और छलकते हैं। तू कहता है तूने पैसे भेजे हैं। तू कहता है तूने पैसे भेजे हैं, मैंने अलमारी में वो सारे सहेजे हैं। अब तो न किसी चीज की न पैसों की चाह है। अब तो न किसी चीज की न पैसों की चाह है, कब बैठेगा बेटा पास मेरे, बस इसी की एक राह है। पकड़े मेरी हथेली को और अपने गाल तक ले जाए। पकड़े मेरी हथेली को और अपने गाल तक ले जाए, फिर अपने ही हाथों से मेरी झुर्रियों को सहलाए। सोचती हूं और मुस्कुराती हूं। सोचती हूं और मुस्कुराती हूं, कब वो मेरा दिन ऐसा आएगा जब मेरा बेटा मेरे साथ वक्त बिताएगा। बस वही मेरे जीवन की सौगात होगी, उससे बड़ी न मेरे लिए और कोई बात होगी। चलती हूं अब मैं। चलती हूं अब मैं, मुझे तेरा इंतजार करना है। चलती हूं अब मैं, मुझे तेरा इंतजार करना है। तू बांटेगा वक्त कभी तो ये एतबार करना है, कल रहूं न रहूं। कल रहूं न रहूं, पर मेरी रूह हमेशा तेरे पास है। कल रहूं न रहूं, पर मेरी रूह हमेशा तेरे पास है। क्यों दूर है मुझसे तू, बस इस बात से मन उदास है। लेकिन चलने से पहले ये कह के विदा लेती हूँ। लेकिन चलने से पहले ये कह के विदा लेती हूँ, तेरे बच्चे दे वक्त तुझको मैं इसकी दुआ देती हूँ। तेरे बच्चे दे वक्त तुझको मैं इसकी दुआ देती हूँ। It's a normal phenomena in today's life where being parents, they want to spend more time with children, and being children, we are too busy to give that time. So the second one is which is a dedication to women. आप सबके लिए, मैं औरत हूं, मैं दुनिया की धड़कन को चलाती हूं। ये इस तरह से लिखा है जैसे कि जो औरत की भावनाएं हैं, मैंने उस सोच के ये कविता लिखी है। मैं औरत हूं, मैं दुनिया की धड़कन को चलाती हूं। धड़कनों को आदमी की माँ बन दुनिया में लाती हूं, साथ उनके बहन बनकर मैं हंसती खिलखिलाती हूं। प्रेम का मतलब उनको मैं प्रेमिका बन सिखाती हूं, छोड़ के अपना घर आंगन मैं उनकी ही हो जाती हूं। बेटी बन हमेशा उनको मैं सजाती और खिलाती हूं, हर एक धड़कन को जीती मैं, हर एक धड़कन जिलाती हूं। मैं औरत हूं, मैं दुनिया की धड़कन को चलाती हूं। हंसे धड़कन तो मैं हंस दूं,
हंसे धड़कन तो मैं हंस दूं, जो वो रोए तो रोऊं मैं। है सारे रिश्ते मेरे ये, उम्र भर इनको सेऊं मैं। खुश उनकी खुशी में हूं, उनके दुख में रोऊं मैं। खुश उनकी खुशी में हूं, उनके दुख में रोऊं मैं। जब सबकी फिक्र पूरी हो, तभी बस रात सोऊं मैं। हर एक सांस में खुद की मैं रिश्तों को निभाती हूं। हर लम्हा खुद को देती मैं, कभी खुद को मिटाती हूं। सब कुछ खुद का खोके भी मैं रिश्तों को बचाती हूं। खुदा ने प्यार बख्शा जो, वो दुनिया पे लुटाती हूं। मैं औरत हूं, मैं दुनिया की धड़कन को चलाती हूं। जब मजबूर हो इंसान तो आंचल में छिपाती हूं। जब मजबूर हो इंसान तो आंचल में छिपाती हूं। गर टूटा हो जज्बा तो सीने से लगाती हूं। गर मजबूर हो इंसान तो आंचल में छुपाती हूं। गर टूटा हो जज्बा तो सीने से लगाती हूं। हो पूरे ख्वाब सबके ही, दुआ ये रोज करती हूं। अपनों की खुशी पे तो मैं खुश हो के मरती हूं। कभी जज्बात बोझिल हों तो सबसे मैं छुपाती हूं। भरे हो अश्क आंखों में मैं फिर भी मुस्कुराती हूं। भरे हों अश्क आंखों में मैं फिर भी मुस्कुराती हूं। मुझे कमजोर कहते पर मेरे सीने में सोते हैं। मुझे कमजोर कहते पर मेरे सीने में सोते हैं। गर चोटें हों जमाने की तो बच्चों से ये रोते हैं। मैं सब कुछ हंस के सहती हूँ, ना बिल्कुल ही जताती हूँ। मुझे दुनिया बनानी है, ये हरदम गुनगुनाती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं दुनिया की धड़कन को चलाती हूँ। मैं आई हूँ दुनिया में इसे बेहतर बनाना है। मैं आई हूँ दुनिया में इसे बेहतर बनाना है पाया इसको जैसा भी बेहतर छोड़ जाना है। मैं कोशिश रोज करती हूँ, हर बच्चे को बताती हूँ, फरिश्ता उसको बनना है, ये कह के सुलाती हूँ। हरदम अपने होठों पे दुआओं को बुलाती हूँ। खुदा का शुक्र करती हूँ, मुझे औरत बनाया है। बेहतर दुनिया करने का सबक मुझको सुनाया है। कुर्बानी खुद की करती हूँ, मैं फिर भी खिलखिलाती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं दुनिया की धड़कन को चलाती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं दुनिया की धड़कन को चलाती हूँ। और ये आखिरी कविता आप सबके लिए, और इसका शीर्षक है तुम। गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ। गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ। गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ। उठाओ हाथ तुम भी मदद में औरों की, या फिर यूं ही जियो और यूं ही मर जाओ। गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ। उठाओ हाथ तुम भी मदद में औरों की, या फिर यूं ही जियो और यूं ही मर जाओ। कल कल जब तुम ऑफिस के लिए निकलोगे तो ट्रैफिक लाइट पर रुकना। कल जब तुम ऑफिस के लिए निकलोगे तो ट्रैफिक लाइट पर रुकना। खिड़की का शीशा नीचे करना अपनी कार का तुम, और पकड़ लेना। और पकड़ लेना उस बच्चे का हाथ जो अपनी उंगलियों से दस्तक दे रहा था तुम्हारे शीशे पर, तुम्हारी एक नजर और एक छोटी सी भीख के लिए। पल भर के लिए आंखें बंद करना अपनी तुम। पल भर के लिए आंखें बंद करना अपनी तुम, और फिर ईमान से बताना, क्या उसकी उंगलियां तुम्हारे बच्चे की उंगलियों से वाकई फर्क है? पल भर के लिए आंखें बंद करना अपनी तुम, और फिर ईमान से बताना, क्या उसकी उंगलियां तुम्हारे बच्चे की उंगलियों से वाकई फर्क है? झांकना उसकी आंखों में और देखना उसमें ख्वाहिशों का वो सैलाब, और वो अनगिनत छोटे छोटे ख्वाब जो अक्सर या तो गाड़ियों के पहिए तले जख्मी हो जाते हैं, या फिर हो जाते हैं बेबस और निढाल गाड़ियों के शीशों पर दस्तक देते देते। फिर भी तुम्हारे और उसके हाथों में कुछ तो बराबर है। फिर भी तुम्हारे और उसके हाथों में कुछ तो बराबर है। तुम अपने बच्चों को पालते हो और वो अपने माँ बाप को। फिर भी तुम्हारे और उसके हाथों में कुछ तो बराबर है। तुम अपने बच्चों को पालते हो और वो अपने माँ बाप को। तुम उतरना अपनी गाड़ी से और उस बच्चे को गोद में उठाना।
तुम उतरना अपनी गाड़ी से और उस बच्चे को गोद में उठाना, बिल्कुल शर्म मत करना, और उसको बताना ऊपर वाला सबका है और उसी ने सबको सहेजा है। आज उसको गोद में उठाने ऊपर वाले ने ही तुमको भेजा है। और फिर कुछ देर खेलना उसके साथ, कुछ देर खेलना उसके साथ और पूछना उससे, क्या कभी वो बिस्तर पर सोया है? फिर कुछ देर खेलना उसके साथ और पूछना उससे, क्या कभी वो बिस्तर पर सोया है? सबसे कीमती उसने इस दुनिया में क्या खोया है? कैसे वो सड़क पर कलाबाजी खाता है, सर्दी में बिन कपड़े बदन को कैसे बचाता है? क्या कभी वो भी माँ बाप से नाराज हो पाता है? क्या कभी वो भी माँ बाप से नाराज हो पाता है? और अगर होता है तो क्या उसे भी कभी कोई मनाता है? क्या कभी दिवाली पर उसके लिए भी कोई नए कपड़े सिलाता है? क्या कभी दिवाली पर उसके लिए भी कोई नए कपड़े सिलाता है? रक्षाबंधन पर थाली में सजाकर क्या उसे भी कोई मिठाई खिलाता है? क्या कभी उसे भी कोई स्कूल बस के लिए जगाता है? पेरेंट टीचर मीट में क्या उसके माँ बाप को भी कोई बुलाता है? यह भी पूछना उससे, पानी की खाली बोतल से खिलौना कैसे बनाता है? पानी की खाली बोतल से खिलौना कैसे बनाता है? फेंके हुए खाने के डिब्बे से कैसे खाना निकाल कर खाता है? तुम में कुछ झिझक होगी, तुम में कुछ झिझक होगी, पर वो मुस्कुरा रहा होगा। तुम में कुछ झिझक होगी, पर वो मुस्कुरा रहा होगा। जिंदगी की परेशानियों को बस हंसी में उड़ा रहा होगा। तुम कहीं और मत जाना, अपने आप को वहीं समेट लेना। तुम कहीं और मत जाना, अपने आप को वहीं समेट लेना, उसी पल में, उसी जगह, और महसूस करना अपने उस अंदर के आदमी को जो अक्सर अच्छे कपड़ों में, गाड़ियों में, मकानों में, होटल में, दुकानों में तुमसे कहीं दूर छिप जाता है। देखते हो आईना रोज ही, पर वो बरसों नजर नहीं आता है। जकड़ लेना उसे, अपने उस अंदर के आदमी को अपने दिल की बाहों में, वहीं उसी सड़क पर, उसी जगह, और फिर कभी छोड़ना नहीं उसे, क्योंकि बस वही तुम्हारी रूह है, वही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारे जिस्म की असमत है वो ही तुम्हारी जान है। फिर मोबाइल निकालना अपनी जेब से, फिर मोबाइल निकालना अपनी जेब से और फोन करना अपने बॉस को। फिर मोबाइल निकालना अपनी जेब से और फोन करना अपने आप को, बॉस को, और कहना उसे कि आज तुम ऑफिस नहीं आओगे। आज का दिन बस अपनी रूह के साथ बिताओगे। आज का दिन बस अपनी रूह के साथ बिताओगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये कुछ कविताएं थी। आई एम सॉरी, माई अपॉलॉजी फॉर पीपल who are not so familiar with Hindi, but one day I'll get it translated into English and maybe you'll be able to feel that essence. So thank you very much for your time. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने particularly आउटलुक का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और ये अवसर दिया कि मैं अपनी कविताएं आपके समक्ष रख सकूं। और मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है कि भलाई का विस्तार कम हो रहा है, उसमें आप कोशिश करें अपने आसपास, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, यू शुड ऑल थिंक अबाउट इट दैट गुडनेस हैज टू बी अप्रिशिएटेड, बिकॉज इफ गुडनेस श्रिंक्स, हैप्पीनेस विल नॉट बी देयर. So there are more and more successful people, but there are less and less happy people. And the reason is that there is a big gap between success and goodness. Happiness needs goodness. Without goodness, there is no happiness. You might be prosperous, you might be rich, but you would not be happy. And the only way to do that is to start appreciating goodness at least as much as you appreciate success. Your every appreciation will go a long way in inspiring people to start doing good. And that will change the society, that will change the nation, and hopefully that will change the world. I have decided to put all my life into this word of spreading goodness. And I feel
that this will be the only solution to create a happy world. I wish prosperity can bring happiness, but it doesn't. How many of remember that we were less happy when we were drawing 2,000, 4,000 or 7,000 rupees? And we are more happy because we are more prosperous now? It doesn't happen. Goodness and happiness, they stay together and they travel together. And they are the most permanent companion of each other. So do goodness, spread goodness, and inspire others to do goodness. Thank you very much.